میں نے آپ سے پہلے ہی دن اور دوسرے دن وعظوں کے اندر ذکر کیا کہ نبی کریم کے زمانے میں جن مسلمانوں نے اسلام دھرم کو قبول کیا ان میں میجورٹی ایسی تھی کہ جنہوں نے نبی کے پاس سے کوئی معجزہ دیکھنے کے لیے مانگنی نہیں کی اور نہ انہوں نے کوئی معجزے کے اوپر اعتقاد لا کے مذہب قبول کیا. انہوں نے نبی کو اپنے دل کی شہادت کے اوپر اور اپنی نصیب داری کے اوپر قبول کیا. جنہوں نے معجزے مانگے اور نبی نے دکھائے ان میں سے میجورٹی نے نبی کو پھر بھی قبول نہیں کیا, معجزے دیکھ کر کے بھی قبول نہیں کیا. تو مرشد کا ملنا یا تو انسان کی خوش نصیبی پہ ہے اور یا اس کی خود کی محنت کے اوپر ہے, اور محنت بھی اس آدمی کی پہلی نصیب داری کے اوپر ہوتا ہے. میں نے آپ سے پرسوں ذکر کیا کہ کس طرح ہمارے امامت کے سلسلے میں سے اثناعشری لوگ جدا ہو گئے. اثناعشری مذہب اس بات کے اوپر ٹکا ہوا ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ چیز کا بھی ذکر کیا کہ اثناعشریوں کے 12ویں امام کا دنیا میں جنم کبھی ہوا ہی نہیں, اور انہوں نے یوں ہی ایک دستک بیٹا لے کے 2 دفعہ اس بات کے لیے اناؤنس کر دیا. ہماری قوم کے اندر سے سن 1900 اور 1901 آج سے 66 اور 67 سال پہلے یہ کھوجے اثناعشری کہ جو زنزبار میں اور ایسٹ افریقہ کے اور مڈغاسکر کے دوسرے علاقوں میں ہیں, اور وہ اثناعشری کے جو انڈیا پاکستان میں ہیں جن کو ہم کھوجا اثناعشری کہتے ہیں. ان اثناعشریوں کو عقل کتنی خراب ہو گئی, کبھی انسان سوچ کرے تو اس کو حقیقت مل جاتی ہے کہ یہ اثناعشری جو کھوجے اثناعشری ہیں کہ جو ہمارے ساتھ سب سے زیادہ دشمناوٹ رکھتے ہیں, ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں. ہمارے مالک نے, ہمارے مولا نے ان کے ساتھ دشمنی رکھنے کا ہم کو منع کیا ہے, لیکن ہم کو یہ بھی منع کیا ہے کہ ان کے ساتھ مت ملو. ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی حسد نہیں, کارن کہ ہم ان سے زیادہ اچھے ہیں. حسد کون کرے جو نیچے ہوئے یا کمزور ہوئے, ہم ان سے زیادہ اچھے ہیں, ہر بات میں اچھے ہیں, اس لیے ہم کو کوئی حسد نہیں. ہمارے مولا نے منع کیا ہے, لیکن ہم کو یہ بھی کہا ہے کہ ان کے ساتھ تم کوئی جاتا میل ملاپ نہ رکھو, سوا کے بزنس کرو, اور بزنس تو ہم کافر سے بھی کرتے ہیں. یہ اثناعشری کھوجے 1900 سن تک ہمارے ساتھ تھے اور اسماعیلی تھے, اور یہ لوگ اور ان کے باپ دادا مولا علی کے زمانے سے لے کے شاہ سلطان محمد شاہ 48ویں جومے تک یہ لوگ امام مانتے تھے. یہ لوگ اور ان کے باپ دادا 1900 سن تک ہمارے اس سلسلے کو مانتے تھے. مولانا اسماعیل, مولانا امام جعفر صادق, مولانا اسماعیل سے لے کے اور مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ تلک اس سلسلے کو یہ لوگ مانتے تھے. یہ لوگ موسیٰ اعظم اور مہدی کے سلسلے کو 1900 سن تلک نہیں مانتے تھے. یہ لوگ بھی صدر دین کے بنائے ہوئے بودے ہوئے آپ لوگوں کی طرح اسماعیلی دھرم کے اندر داخل کیے گئے تھے, اور یہ لوگ بھی آپ لوگوں کی طرح یا میرے باپ داداؤں کی طرح ہندو تھے. ہم تو پنجاب کے جو اسماعیلی ہیں 800 برس سے پیر شمت کے زمانے سے اسماعیلی ہیں, لیکن کھوجے مرید جو پیر شمت کی صدر دین نے بنائے وہ 600 برس سے اسماعیلی ہیں. تو یہ اثناعشری اور ان کے باپ دادا پیر صدر دین کے زمانے سے 600 برس سے اسماعیلی مذہب پالتے رہے. ان مورخوں کی عقل کی طرف دیکھو کہ کبھی 1900 سن میں یہ ماڈرن زمانے میں اس 20th سینچری میں یہ لوگ ہم سے جدا پڑے تو آگے جانا تھا, اس کی جگہ 1100 برس پیچھے چلے گئے. 1100 برس پیچھے چلے گئے اور پھر انہوں نے امام مہدی کو ماننا شروع کر دیا. اثناعشری ہوئے.
بھائی تمہارے باپ دادا سلطان محمد شاہ کو، علی شاہ کو، حسن علی شاہ کو، ان سب اماموں کو تو مانتے چلے آئے ہیں. تو اس طرح سے یہ لوگ سن 1900 کے اندر ہمارے سے جدا پڑ گئے. سچ بات تو یہ ہے کہ ہم نے یعنی ہماری قوم نے ان لوگوں کو نکال دیا. میں آپ کو آگے چل کے اس بات کا بیان کروں گا، کیونکہ ابھی جب میں حضرت امام اور انڈیا میں امامت کے لیے اوپر میں آؤں گا تب میں آپ کو اور بھی اس بات کے لیے ذکر کروں گا. تو مولانا اسماعیل سیریا کے اندر امامت کی گادی کے اوپر بیٹھے اور اسماعیلیوں نے اس امام کی سیوا شاکری کی، ان کا حکم مانا. مولانا شاہ اسماعیل سے لے کے جو ہمارے چھٹے امام تھے، ہمارے 10ویں امام حضرت مولانا رضی الدین عبداللہ فلک، شاہ اسماعیل، شاہ محمد بن اسماعیل، شاہ وفی احمد، شاہ تقی محمد اور شاہ رضی الدین عبداللہ. مولانا رضی الدین عبداللہ ہمارے 10ویں امام تھے. یہ 5 امام اور اس میں خصوصاً شاہ اسماعیل، شاہ محمد بن اسماعیل، شاہ وفی احمد اور شاہ تقی محمد، 4 امام بھیس بدل کے بزنس مین کی طرح ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں مسافریاں کیا کرتے تھے اور پتہ نہیں لگتا تھا کہ امام کہاں ہے اور کون ہے. اس کا کارن یہ تھا کہ امام کے یہ جو گھر والے تھے، موسیٰ کاظم اور ان کی فیملی والے جو امام کے بھائیات ہوتے تھے، اور اس زمانے کے اندر جو عباسی خلیفہ تھے، وہ لوگ ہمارے مولا کی جان کے دشمن تھے. اور ہر وقت سپاہی لوگ سراغ رسان وہ پیچھے ہی پڑے رہتے تھے کہ جہاں امام ملے. اس لیے امام ہمارے ہمیشہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کے اندر بھیس بدل کے نکلا کرتے تھے. صرف ٹاپ موسٹ جو ایک دم اونچے حضرت امام کے نزدیک رہنے والے جو وہ زمانے کے اندر مشنریز تھے، وہی جانتے تھے کہ امام کدھر ہے، اور انہی کے ساتھ ہی امام کی بات چیت اور میل ملاقات ہوتی تھی اور ان کو پتا ہوتا تھا کہ آج امام کدھر ہیں یا کل کدھر ہیں، اور وہ امام کے پاس جا کے سب جا کے رپورٹیں وغیرہ دیتے تھے. یہ چیزیں، یہ واقعات آپ نور مبین میں پڑھ سکتے ہو، میں زیادہ ڈیٹیل نہیں دیتا. مولانا امام رضی الدین عبداللہ کے زمانے کے اندر ابو عبداللہ نام کے ایک مشنری تھے جن کو مولا نے الجیریا کی طرف بھیجا. موروکو، الجیریا، ٹیونیشیا اور لیبیا، اس سائڈ کے اوپر اس نے آ کے اسماعیلی مذہب کی اشاعت کی، اور اسماعیلی مذہب کی بہت اشاعت کرنے کے بعد مولا کے پاس گیا کہ خداوند ادھر ہزاروں لاکھوں اسماعیلی ہوئے ہیں، اب آ کے چلو اور وہاں بیٹھو اور اپنا راج بناؤ. تو مولانا رضی الدین عبداللہ نے منع کیا اور فرمایا کہ تو شہزادے کو لے جا. اور مولانا امام مہدی علیہ السلام کے نام سے وہاں حکومت شروع کی. مولانا امام مہدی ادھر آئے اور اسماعیلیوں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے راج کو مولا کے چرنوں میں رکھ دیا اور مولا گادی کے اوپر آ کے بیٹھ گیا. مولا راج نہیں کرتے تھے، راج ان کے جو منسٹر تھے وہ چلاتے تھے. آج کی دنیا کے اندر یہ جو کانسٹیٹیوشنل مونارکی ہے، یہ ہم اسماعیلیوں نے شروع کی ہے. ہم اسماعیلیوں نے اس بات کا پایا ڈالا ہوا ہے. اور دنیا کے اندر جو سوشلزم ہے، جس کے لیے کبھی کبھی لوگ بولتے ہیں، یہ سوشلزم کی بنیاد ڈالنے والے حضرت رسول کریم اور مولا مرتضی علی تھے. انہوں نے سوشلزم کی بنیاد رکھی اور اس بنیاد کو سب سے زیادہ ٹیکا دیا اور امپلیمنٹ کیا تو اسماعیلیوں نے کیا آلموز کے اندر. حسن بن صبا کی اگر آپ اسٹوریز پڑھو تو آپ کو دیکھ کے تعجب ہوگا کہ آج کی دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ہمارے اسماعیلیوں کے لیے کوئی بھی نوی نہیں ہے، کوئی بھی نوی نہیں. کمیونزم کے جو پرنسپل آج ہیں، جو لینن اور ٹروٹسکی کے آئیڈیاز کے اوپر نبھے ہوئے ہیں، ان کے اندر سے لینن اور ٹروٹسکی
ये दोनों, या कार्ल मार्क्स था, ये तीनों, और उनके साथ चौथा भी एक आदमी था, महात्मा टॉल्स्टॉय, जो रशिया का एक बहुत बड़ा सेंट की तरह का नॉवेलिस्ट, ड्रामाटिस्ट था। वो इन लोगों के ग्रुप में था, मगर बाद में उसने देखा कि ये तो बदमाश है, वो जुदा हो गया। बदमाश क्यों? बदमाश किसको कहते हैं? जिनका रास्ता बद हो गए, चाहे एक बदी हो गए चाहे 10 बदियां हो गए, जो आदमी बदी से काम निकाले उसको बदमाश कहते हैं। बदी के रास्ते से काम करने वाला हो गए उसको हम उर्दू भाषा में बदमाश कहते हैं, बदमाश। लेनिन और ट्रॉट्स्की इसके साथी थे, टॉल्स्टॉय थे। मगर जब टॉल्स्टॉय ने ये देखा कि इन दोनों के ख्याल बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं, तो महात्मा टॉल्स्टॉय जुदा हो गया। टॉल्स्टॉय, कभी आप उसकी किताबें पढ़ो, आपको बड़ा मजा आएगा। बहुत रिलीजियस माइंडेड शख्स था वो, खुदा का आबिद और नेक इंसान था। लेकिन मार्क्स, ट्रॉट्स्की और लेनिन, इन तीनों ने जो कम्युनिज्म के आइडियाज बनाए वो हकीकत में क्या था? जुल्म था, अधर्म था, नास्तिकवाद था, उसके अंदर बदी थी, बुराइयां थी। कम्युनिज्म के अंदर अमुक अच्छी चीजें हैं जो इस्लाम ने सिखाई हैं, और इस्लाम ने 1400 साल पहले सिखाई है। ये कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये कोऑपरेटिव बिजनेस, ये सब चीजें आपको आलमूद की इस्माइली हिस्ट्री में मिलेंगे। 1000 साल पहले दुनिया को उस वक्त इन चीजों के स्पेलिंग भी नहीं आते थे कि जब इस्माइलियों ने ये चीज दुनिया के अंदर लगाई। आपको मालूम है आगे चल के जब इमाम कायम अलैहिस्सलाम ने उधर राज किया और बड़ी बड़ी विक्ट्री हासिल की, मौलाना कायम के नाम से इस्माइली फैलते रहे, और जिस वक्त इमाम मोइज अलैहिस्सलाम इजिप्ट में आए तो मौलाना मोइज ने इजिप्ट के अंदर दुनिया की वो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, जिसको आज अल अज़हर यूनिवर्सिटी कहते हैं। सारी दुनिया के अंदर रियल सेंस के अंदर, आजकल की मॉडर्न सेंस के अंदर जिसको हम यूनिवर्सिटी कहते हैं, वो यूनिवर्सिटी सारी दुनिया में सबसे पहले बनाने वाले हम इस्माइली थे इजिप्ट में, और आज तक वो यूनिवर्सिटी खड़ी है। आज भी हमारा हाजिर इमाम उस यूनिवर्सिटी को हजारों पाउंड की ग्रांट देता है, और आज अल अज़हर यूनिवर्सिटी के अंदर इस्माइली चेयर भी है। आप जाओ उनके प्रोफेसरों से मुलाकातें करके देखो, पूछो उनके हालात। मैंने तो कई दिन निकाले हैं वहां। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो आज सारी दुनिया की यूनिवर्सिटियों के अंदर लगा हुआ है, सारी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में क्या है कि जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो पता है आपको, कॉन्वोकेशन होती है। उस कॉन्वोकेशन के अंदर चांसलर आता है, वाइस चांसलर आता है, बड़े बड़े लोग आते हैं, देश का प्रेसिडेंट आते हैं, और वो लोग आके ग्रेजुएट्स को एक विग देते हैं और एक गाउन देते हैं। 1000 साल पहले इस्माइलियों ने जो यूनिवर्सिटी बनाई थी उसके अंदर जो ग्रेजुएट होते थे, ये इस्माइलियों ने चालू किया है। जो आज सारी दुनिया के अंदर गाउन और विग मिलता है ना ग्रेजुएशन का, और उनको एक छोटी सी टाई मिलती है, ये इस्माइलियों की इन्वेंशन है। ये टाई क्रिश्चियनों की नहीं है, ये क्रॉस नहीं है, ये की है। ये टाई की आज भले शक्ल इस टाइप की है, लेकिन ये इस्माइलियों की इन्वेंशन है, याद रखो। और ये कोट और पातलून, ये भी इस्माइलियों की इन्वेंशन है। स्पेन के अंदर ज़रियाब नाम का एक इस्माइली फिलोसोफर था, उसने ये कोट पातलून बनाए। भले ये डबल ब्रेस्टेड और दूसरे किस्म के डिजाइन आज बन गए हैं, मगर इसके इन्वेंटर्स इस्माइली हैं। इस्माइलियों ने यूनिवर्सिटी के अंदर जो पास होते थे उसको गाउन, जिसको हम जब्बा कहते हैं, सिर के ऊपर एक बीच में टोपी रख के बाहर पगड़ी बांधते थे और उसको एक टाई देते थे। वो जमाने के अंदर कास्ट के तौर के ऊपर ऐसा ही गले में बांध लेते थे एक नॉट लगा के। लेकिन ये ग्रेजुएशन की निशानी थी जो इस्माइलियों ने चालू की। चश्मा, आज आप में से कितने आदमियों ने ये चश्मे पहने हुए हैं? ये फ्रेम का डिजाइन और चश्मे, इसके इन्वेंटर्स इस्माइली हैं। मैं गप्पे नहीं मारता, नहीं। पढ़ो, किताबें पढ़ो, नावल पढ़ना छोड़ो, अच्छी अच्छी हिस्ट्रियां पढ़ो।
आओ मेरे पास, मैं आपको लिस्ट ले दूं। इस्माइली एसोसिएशन दार एस सलाम में लिखो कि हमको इस्माइली लिटरेचर और स्टडी करने के लिए किताबों की लिस्ट चाहिए। मैंने लगभग 200 से ऊपर किताबों की लिस्ट बना के दार एस सलाम एसोसिएशन में रखी हुई है, और उसमें से मोस्टली किताबें हम लोग खरीद के अपनी रेफरेंस लाइब्रेरी दार एस सलाम में पढ़ी हैं। लेकिन बात क्या है कि हमारा 99% लिटरेचर अरबी में, फारसी में, उर्दू में है। इंग्लिश के अंदर बहुत थोड़ी किताबें हैं जो ट्रांसलेट हुई हैं। पेरिस की मैं मेडिकल एकेडमी देखने गया, और फ्रांस के अंदर मेडिसिन बहुत एडवांस है। मैंने जब अंदर पांव रखा तो बहुत बड़ा हॉल है, 2 साइड से वो आगे चल के चेयर है, मगर हॉल के बीच में बड़ी आग के नीचे एक आदमी का पुतला लगा है। मैं पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, फखर से मेरी गर्दन ऊंची हो गई। अबू अली सीना का, अबू अली अमृतसरी का तो नहीं था, लेकिन अबू अली सीना का वहां स्टैच्यू लगा हुआ था। ये अबू अली सीना, जिसको इंग्लिश में हम एवी सीना कहते हैं, ये इस्माइली था। 16 बरस की उम्र में वो डॉक्टर बना। 33 बरस की उम्र तक 164 किताबें लिखी उसने। 17 साल में 164 किताबों का राइटर बना, और उसकी सबसे बड़ी ऑथेंटिक बुक है अल कैनन, जिसको हम अरबी में अल कानून कहते हैं। अल कैनन आज दुनिया भर की, जापान से लेके अमेरिका तक की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं मेडिसिन के लिए, एवी सीना ने जो चीजें 1000 वर्ष पहले नक्की करी हुई थी, आज इतनी मॉडर्न डिस्कवरी हो गई, मगर एवी सीना की बनाई हुए प्रिंसिपल्स को अभी तक कोई ने चेंज नहीं किया। कितना एडवांस आदमी होगा वो हमारा दीन भाई था, वो इस्माइली था। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के लिए ये गैलीलियो को याद करते हैं ये लोग हमेशा, मगर 1000 साल पहले उमर खयाम ने एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के लिए जो प्रिंसिपल्स बनाए थे, आज कोई उनको चेंज न कर सका। गैलीलियो की बहुत सी थियरी चेंज हो गई, लेकिन उमर खयाम की थियरी चेंज न हुई। कितने एडवांस होने चाहिए। उमर खयाम ने आसमान की स्टडी करने के लिए उसने एक शीशा अदब किया, आज जिसको हम कहते हैं लेंस बनाया। लेंस के इन्वेंटर इस्माइली हैं। मैंने कहा ना, चश्मे ये इस्माइलियों ने बनाए, क्योंकि चश्मा सबसे पहला लेंस था, और ये लेंस बनाने वाला उमर खयाम, ये एक इस्माइली था। दुनिया के अंदर इस्माइलियों ने क्या क्या काम किए हैं, और आज इस्माइली कोई छोटी सी रेस्टोरेंट चलाता है, कोई एक गाड़ी चलाता है, कोई एक छोटी सी पीली पीली बिजारी की दुकान बना रहा है, और अमुक छोकरे हजाम बनने के लिए यूरोप जा रहे हैं। ये इस्माइलियों के हाथ में भी धंधे रहे। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बैरिस्टर बनो, कानून दान बनो, साइंटिस्ट बनो, आगे आओ, दुनिया को दिखाओ कि इस्माइली भेजा क्या है, जिसके पास ऐसी अच्छी नूरानी गाइडेंस हो। हाजिर इमाम जैसी वो क्लास पीछे रहे, इसलिए कि हमारे लोगों में यूनिटी नहीं। हम एक दूसरे को उत्तेजन नहीं देते, बल्कि कोई ऊपर चढ़ने वाला होगा ना, हम उसका पाँव खींच लेते हैं कि मैं नहीं जाता बच्चों, तू भी क्यों जाए। ऐसा नहीं है कि चलो मैं नहीं गया, चल तू जा। ये स्पिरिट हमारे में नहीं है। हमारे में ये है कि न हम खाते हैं न खाने देंगे, इसलिए हम लोग पीछे रहे हुए हैं, और हमने मार खाई। इंशाल्लाह मुझे फख्र है इस चीज का कि इस वक्त जो हमारे यंगस्टर्स हैं ना, कि जो 25-30 बरस के नीचे के हैं, उन लोगों के अंदर ये इस्माइली स्पिरिट की जागृति पैदा हो रही है, और ये इंशाल्लाह हुक्मयाली का आने वाले 25-50 वर्षों के अंदर हम अपनी पुरानी 500,000 बरस पहले की जाहो जलाली हम बनाएंगे। 25-50 बरस तक अच्छा मैंने जाती कह दी, इससे भी जल्दी इंशाल्लाह, इससे भी जल्दी जिंदारो। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द इस चीज को देखोगे। वो वक्त नजदीक आ रहा है, कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर इस्माइली अपनी जाहो जलाली जरूर दिखाएंगे।
इमाम के ऐसे इशारे बहुत से हैं। तो इस तरह से हमारा इस्माइली राज कायम हुआ अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका से राज जब ये निकल के ईरान गया तो उस वक्त हमारे इमाम मुस्तफा अलैहिस्सलाम की वफात नजदीक का जमाना था। हमारे 16वें इमाम मौलाना हाकिम इजिप्ट के राजा थे। मौलाना हाकिम और मौलाना मुस्तफा तक, यानी 3 इमामों के जमाने तक इस्माइली राज कहां तलक था? सोरोटी किधर है? युगांडा में ना। सोरोटी युगांडा में है, ईस्ट अफ्रीका में है। इस सोरोटी तलक हमारा इस्माइली राज, युगांडा के किनारे तक सारा आखा सूडान और नीचे सोरोटी तक इस्माइली सल्तनत थी। मौलाना हाकिम एक दिन सफेद घोड़े पे बैठ के कहीं घूमने के लिए निकले, शाम को घर वापस नहीं आए। अमरदार ढूंढने के लिए निकले मगर पता न लगा। सिर्फ मौलाना इमाम का एक ऊपर का जो पैराहन था, ओवरकोट या शर्ट थी, वो नजर आई। उसको खून लगा हुआ था। न घोड़ा मिला, न इमाम के दूसरे कपड़े मिले, न इमाम मिले। 3 दिन हो गए। आखिर मौलाना जाहिर ने फरमाया कि मेरे बाप जमा पूरा कर गए हैं और मैं तुम्हारा इमाम हूं। मगर इमाम हाकिम मारे गए, क्या हुआ पता नहीं लगा, क्योंकि उनकी लाश भी मिली नहीं। जब इमाम जाहिर गादी के ऊपर उन्होंने तीसरे दिन अपनी डिक्लेरेशन की तो इस्माइलियों में से अमुक टोड़े ने मौलाना जाहिर को कबूल नहीं किया और ये कहा कि नहीं, इमाम हाकिम गायब हो गए हैं, आसमान की तरफ चले गए हैं और वो जरूर वापस आएंगे। मगर दूसरे इस्माइलियों ने बहुत उनको समझाया कि ऐसा दुनिया के अंदर नहीं होता कि इमाम गायब हो जाए। हाजिर इमाम का जाहिर है, तुम इनको मान लो। मगर वो अपनी वो हच्चरपने के ऊपर अड़े रहे और आखिर वो जुदा हो गए। ये एक दूसरा पार्टा हमारे इस्माइली मजहब से निकला। पहला मूसा कादिर के जमाने से निकला, ये दूसरा निकला। मगर ये लोग इस्माइली थे। इनको आजकल हम दुरूज कहते हैं। ये दुरूजी आंकड़े 20 लाख हैं और इराक में, लबनान में और बाकू अजरबैजान के अंदर ये लोग फैले हुए हैं। आज भी जब कभी हजरत इमाम सीरिया जाते हैं तो ये दुरूज के मुखी कमड़िया माँ बाप के पास आकर मेहमानियां रखते हैं और माँ बाप की मुलाकात करते हैं, माँ बाप से गाइडेंस मांगते हैं। बीच में ऐसी एक बात निकली थी कि बहुत मुमकिन है कि थोड़े टाइम में ये दुरूज शायद हाजिर इमाम को वापस माफी मांग के कबूल कर ले कि तू हमारा इमाम है। इस बात की चर्चा चालू है। ये 20 से 25 लाख दुरूज हैं और मैं दुरूजों से मुलाकात कर चुका हूँ। वो लोग दुआ पढ़ते हैं, न्याज निकालते हैं, उनके नमाज खाने हैं, वो लोग दसमंत भी निकालते हैं, मगर वो पैसा अपनी ही कौम के ऊपर वापस धार्मिक बाबतों के लिए खर्च कर देते हैं। उनमें मुखी कामड़िया है, लगभग हमारे जैसी ऑर्गेनाइजेशन है। मौलाना इमाम हाकिम हमारे 16वें इमाम तलक वो हमारे साथ इस्माइली थे। जब 18वें इमाम मौलाना मुस्तफा अलैहिस्सलाम का जमाना आया, मौलाना मुस्तफा ने 61 बरस इमामत करके जब कायरो के अंदर वफात पाई, मौलाना निजाम उस वक्त अलेक्जेंड्रिया में रहते थे और ये वो जमाना था कि जब आलमूद के ऊपर हसन बिन सबा का छोटा सा फिदाइयों का लश्कर अपना राज कायम कर रहा था और सुल्तान संजर के साथ उनकी आपस के अंदर लड़ाइयां हो रही थी, निजामुल मुल्क के भी हथकंडे हो रहे थे। इतने में जब आलमूद के ऊपर हमारा अच्छी तरह से कब्जा हो गया, पक्का हो गया, तो हसन बिन सबा आलमूद से अपने कुछ साथियों को लेके कैरो आए ताकि इमाम को अर्ज करे कि खुदावंद अभी तुम एक दफा उधर भी पगला कर, क्योंकि यहाँ तो हमारा राज बहुत अच्छी तरह चल रहा था इजिप्ट के अंदर।
मगर वो रास्ते में ही थे और खबर मिली कि मौलाना इमाम मुस्लिम सिलसिला ने वफात पाई और जमा मौलाना इमाम निज़ार को मिला। लेकिन मौलाना इमाम निज़ार अलेक्जेंड्रिया के अंदर थे और यहाँ जैसे ही पिताश्री गुजर गए तो मुझसे अली मौलाना निज़ार के छोटे भाई मगर दूसरी माँ थे, उसने दुनियावी लालच में आके राजखाना अपना गादी संभाल ली और अपने आप को खलीफा और इमाम तरीके डिक्लेयर किया और फौरन लश्कर भेज के मौलाना इमाम निज़ार और उनके फर्जंद इमाम हादी जिस घर में रहते थे उस घर को चारों बाजू घेरा डाल के न किसी को बाहर जाने दे रहे न किसी को बाहर से अंदर जाने दे रहे, नजर कैद कर दिया। मुझसे अली के जिन इस्माइलियों ने मान लिया उन इस्माइलियों को आज हम बोहरा कहते हैं। बोहरे भी इस्माइली हैं, जिस तरह दुरूस इस्माइली हैं, हम इस्माइली हैं, बोहरे भी इस्माइली हैं, लेकिन हम निज़ारी इस्माइली और वो मुझसे अलविया इस्माइली। लेकिन आज की दुनिया के अंदर और हिस्ट्री में स्पेशल नाम इस्माइली का हमारे ही लिए यूज होता है। बोहरों को हम इस्माइली अभी नहीं कहते क्योंकि उन्होंने शाह इस्माइल का रास्ता ही छोड़ दिया। इमामत की यह बात कि इमामत कयामत तक निभने वाली है। 1400 साल से इस्माइली दाई और मिशनरी सारी दुनिया में कहते आए और 1400 साल से हमारे इमाम भी दावा करते आए कि इमामत कयामत तक चलेगी। मुझसे अली थोड़ा टाइम खिलाफत और इमामत करके गुजर गए और उनके घर के अंदर एक बेटा हुआ। वो बेटा बहुत छोटी उम्र में गादी के ऊपर बैठा, 16 साल की उम्र का बेटा छोड़ गया। उसका नाम था आमिर। आमिर गादी के ऊपर आया। इस दरमियान मुझसे अली ने जब मौलाना निज़ार को नजर कैद कर रखा था, शहजादा मौलाना हादी भी वहां थे, तो हसन बिन सभा ने शहरों छोड़ दिया और चले गए अलेक्जेंड्रिया। और वहां रात के वक्त वो गार्ड जो थे उनमें से 2-3 गार्ड को मार के उनके खुद कपड़े पहने, यूनिफॉर्म पहनी और अंदर जाके मौला की मुलाकात की और मौला को अर्ज की कि खुदावंद गादी बिल्कुल तैयार है, आज मुझ फतेह हो चुका है और आप जल्दी चलो मेरे साथ। मौलाना इमाम निज़ार ने फरमाया, ऐ हसन सभा, बहुत थोड़ा टाइम मेरी इमामत का बाकी है, तुम शहजादा हादी को ले जाओ, ये तुम्हारा इमाम है। जब वहां पहुंचोगे तब मेरा जमा पूरा हो चुका होगा, इसको वहां जाके इमाम के तौर पे डिक्लेयर करना। आंखों में आंसू ऐसे मौला का हुक्म सिर पे उठाया। मौलाना इमाम हादी को हसन बिन सभा और उसके साथी बड़ी हिकमत और जान के ऊपर खेल के अलेक्जेंड्रिया में से निकाल के दरिया के रास्ते से लेके आए। ये जो नहर सुएज है ना, ये सुएज कैनाल जिसके ऊपर आज झगड़ा है, आपने सुएज कैनाल की हिस्ट्री पढ़ी? आपने इजिप्ट का पुराना नक्शा देखा? कभी आप कैरो में जाओ तो कैरो के अंदर जो ओल्ड म्यूजियम है वो देखो, 1000 बरस पहले का आप इजिप्ट का नक्शा देखो, आप ताज्जुब करोगे दीनदारों कि ये सुएज के अंदर से किश्तियां चलती थी। स्टीमशिप्स नहीं थे उस जमाने के अंदर, हवा से चलने वाले जो थे। मगर आप देखो कभी नक्शे के अंदर कि छोटी छोटी लेक हैं, इन लेक को इस्माइलियों ने काट के नहरें बनाई थी और मेडिटेरेनियन से रेड सी में और रेड सी से मेडिटेरेनियन के अंदर इस्माइली किश्तियां चलाते थे। ये सुएज कैनाल फर्डिनेंड दी लेसिथ ने नहीं बनाई, इस्माइलियों ने बनाई है। फर्डिनेंड दी लेसिथ ने क्या किया कि इसको सीधा किया, चौड़ा किया, लेकिन सुएज कैनाल की बुनियाद हमने बनाई, इस्माइलियों ने बनाई। सुएज कैनाल के इन्वेंटर हम लोग हैं। ये हमारी ऐसी जड़बंदी हिस्ट्री है। इस्माइलियों ने दुनिया में क्या क्या काम किया है, कोई ऐसा साइंस का बाकी डिपार्टमेंट नहीं कि जिसके अंदर इस्माइलियों ने हाथ नहीं डाला होवे और उसमें प्रोग्रेस नहीं की होवे। मगर हम लोग पड़े हुए हैं एरिया के अंदर, छोटी छोटी दुकानों में एक एक ब्लैंकेट बेच के आराम से बैठे हैं। हमको मालूम ही नहीं कि हमने क्या किया है। उठो जागो,
अपनी ऐसी गोल्डन हिस्ट्री पढ़ो, किताबें पढ़ो, अपने बच्चों में से एक बच्चे को इस्माइली मजहब की हिस्ट्री पढ़ाने के लिए भेजो। मगर ऐसा नहीं है कि सीनियर में फेल हो गया चलो मिशनरी बना दो, नहीं, और कोई काम नहीं मिला इसके लिए नहीं। अपने बच्चों को ग्रेजुएट बनाओ, मास्टर बनाओ, डॉक्टर बनाओ फिलोसफी का और दूसरे शोबों का, और फिर उनको कहो कि अभी तुम इस्माइली हिस्ट्री के अंदर जाओ ताकि हमको पता लगे। तो हमारा इधर का जो इजिप्ट का राज था वो मौलाना मुस्तम सिलसिला के छोटे बेटे ने छीन लिया, लेकिन आलमोत में हमारा राज शुरू हुआ और इमामत का सिलसिला अफ्रीका से निकल के ईरान में चला गया। मुफ्ती अली का बेटा आमिर खलीफा बना और बोहरों का इमाम बना, लेकिन मुफ्ती अली के इस बेटे आमिर के घर में कोई बच्चा नहीं था। आखिर 21 बरस की उम्र में आमिर बीमार पड़ा तो उसकी वाइफ हमल से थी, आमिर गुजर गया, उसकी घरवाली को पेट था। बोहरों के दानियों ने, मिशनरियों ने सब लोगों को कहा फिक्र नहीं, इमामत की गादी का वारसदार उसकी मां के पेट में है। 3 महीने गादी खाली पड़ी रही, आखिर डिलीवरी हुई, छोकरी का जन्म हुआ, सिलसिला बंद हो गया। अभी क्या करें? जिन मिशनरियों दाइयों ने, बोहरों के दाइयों मिशनरियों ने जो ये डिक्लेयर किया था और ये जो हमारी किताबों चौपड़ियों में हमेशा डिक्लेयर करते आते थे कि इमामत तो कयामत तक रहने वाली है, अब मुंह क्या दिखाएं? बस इन्होंने कह दिया कि हजरत तैयब का जन्म हुआ, इन्होंने नवा नाम रखा कि छोकरा हुआ, तैयब का जन्म हुआ और वो गायब हो गए, जन्म के साथ ही गायब हो गए। तो जन्म की जरूरत क्या थी? ये चीज हिस्ट्री के अंदर प्रूव है। उनका भी सिलसिला खत्म हो गया और आज बोहरे हमारे इमाम की तरफ देख रहे हैं। 1926 के अंदर बोहरों के ये सैयदना जो गुजर गए हैं ना, उसके ऊपर उनकी कौम में से केस हुआ था। अली भाई शरफ अली कंपनी वालों ने गोरा मजहब छोड़ के केस किया सैयदना के ऊपर। बॉम्बे के हाई कोर्ट के अंदर जब सैयदना ताहिर सैफुद्दीन की जबानी ली गई तो जज पूछता है कि आप बोहरों के इमाम हो? तो उसने ऐसे 2 हाथ ऊंचे किए, कहता नहीं, मैं इमामत का दावा नहीं करता, इमामत का दावा सिर्फ नामदार आगा खान करते हैं, मैं तो दाई का दावा करता हूँ, दाई यानी मिशनरी। और वो हमेशा अपने आप को दाई ही कहते रहे, उन्होंने कभी भी इमामत का दावा नहीं किया, क्योंकि इमामत का सिलसिला उनकी नजर में बंद हो गया, गायब हो गया। सारी दुनिया में ऐसे कई जतीम पैदा हुए, रसूल करीम की वफात से लेके आज तक 32 जनों ने खोटा खोटा नबूवत का और इमामत का दावा किया, और मैंने इन 32 आदमियों का नाम लिखा है अपनी किताब इस्माइली मजहब इस्माइलिया के अंदर। मैंने नाम थाम सब उनका उसकी हिस्ट्री दी है। 32 जनों ने, लेकिन कोई मारा गया, कोई की नस्ल बंद हो गई, नाम निशान मिट गए उनके। और ये हमारे इमाम ज़मान का सिलसिला चालू है और कयामत तक चालू रहेगा। इस तरह से इमामत कुछ वर्षों के बाद ईरान से निकल के हिंदुस्तान में आई। मौलाना हसन अली शाह बाप 1842 के अंदर इंडिया में आए। 125 बरस हुए उस बात को, बराबर 125 साल। और सिंध के अंदर आके बलोचिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते से मौला आए, यानी अफगानिस्तान से बलोचिस्तान आए और बलोचिस्तान से सिंध में आए और सिंध से फिर नीचे उतर के माँ बाप बम्बई आए और बम्बई को अपना दरखाना बनाया। मौलाना हसन अली शाह माँ बाप जब इंडिया में आए तो कई 100 बरस तक पीरी जोमा इंडिया के अंदर बंद हो गया था। आपको कभी याद होवे, हमारे पीरों की जो हिस्ट्री है वो कोई भी जगह मिलती नहीं, लेकिन मैंने आश्रय 100-150 किताबों की इधर उधर छानबीन करने के बाद मैंने 2 महीने पहले दारुस्सलाम के अंदर
पीरों की हिस्ट्री उपांगा जमात खाने ने शुरू की थी और 15 दिन तक रोज एक घंटा तक पौना घंटा तक मैं ये पीरों का सिलसिला बोलता रहा, जो कि कंप्लीट डिटेल्स नहीं दे सका, लेकिन काफी डिटेल्स फिर भी हैं। मैंने मुफ्ती साहब कमरिया साहब को अर्ज की है, पीरों की हिस्ट्री इस्माइली एसोसिएशन से मंगा के आप इधर सुनो। ये चीज आपके लिए बिल्कुल नई होगी, क्योंकि अभी तक कोई भी किताब पीरों की हिस्ट्री के ऊपर नहीं लिखी हुई। पीर हसन कबीरुद्दीन की वफात के बाद उनके भाई पीर ताजुद्दीन बैठे थे, और पीर ताजुद्दीन जिस वक्त बैठे गादी के ऊपर आए, पीरी जोत के ऊपर, उस वक्त पीर हसन कबीरुद्दीन के बड़े बेटे इमाम शाह वो इस्माइली मिशनरी के तौर पे कामकाज करते रहे। इमाम शाह पक्के इस्माइली थे, पीर हसन कबीरुद्दीन के बेटे थे, मौलाना हजर इमाम के घराने की दावत करते रहे। इमाम शाह के बाद उनके बेटे नूर मोहम्मद शाह, जिसको भूल से हम लोग नर मोहम्मद शाह कहते हैं, नर मोहम्मद शाह नहीं, ये बिगड़ के नूर का नर बना, मगर नूर मोहम्मद शाह वो भी इस्माइली थे, सतवैनी उनकी लिखी हुई है, और इमामों का उन्होंने दावत की। और इसी तरह से उनके बेटे यानी इमाम शाह के पोतरे नूर अहमद शाह, जिसने सिहरती लिखी, वो भी इस्माइली मजहब के ऊपर बराबर थे, मगर नूर अहमद शाह के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपने मजहब को अलग कर लिया, और वो लोग नूर बख्शी खानदान में से बने हुए थे, इसलिए दो टुकड़े फिर उनके आगे जाके होते हैं, एक सिलसिला नूर बख्शियों का हो गया और एक इमाम शाहियों का हो गया, पीराना के अंदर जो इमाम शाही हैं। मगर इमाम शाह, नूर मोहम्मद शाह और नूर अहमद शाह का इसके अंदर कोई हाथ नहीं। पीर ताजुद्दीन को इमाम ने बुलवाया मौलाना मुस्तनसिर बिल्लाह सेकंड ने, तो जब ग्राम में से जाने लगे तो जमात ने फनफाड़ा किया, और एक पैसे वाला आदमी था, उसने इमाम के लिए खिलत दी, बहुत कीमती कपड़ा था, वो खिलत के तौर पर, खिलत कहते हैं जब्बा बनाया जावे, उसको खिलत कहते हैं। जैसा हाजिर इमाम टाइटल धारियों को जब्बे देते हैं, ये हाजिर इमाम की तरफ से हमको खिलत मिलती है। तो उन्होंने मौला की खिलत बनाने के लिए एक बहुत कीमती जरी का कपड़ा था, वो दिया, और भी मेहमानियां वगैरह हुई, और एक पगड़ी थी। मौला के हुजूर में पीर ताजुद्दीन पहुंचे और सारे इस्माइलियों का हालचाल बयान किया। पीर ताजुद्दीन ने मौला के हुजूर में सब मेहमानियां पेश की, मौला ने उसका जुब्बा बनाया, पहना, पगड़ी भी बांधी। जब भी 2-4 महीने के बाद पीर ताजुद्दीन वापस हिंदुस्तान आने लगे, मौला के हुजूर में जाके जब पीर ताजुद्दीन ने रजा मांगी कि खुदावंद मैं अब जाता हूँ, तो मौलाना इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह ने अपनी रहमत की नजर से वो पगड़ी और वो जुब्बा और गले का चेन ये पीर ताजुद्दीन को बख्शीश दे दी। हमारे इमाम की आदत है, कभी कभी माँ बाप के गले में हम चेन पहनाते हैं तो साहब पहन लेता है, कबूल करता है, खाना बना देता है, फिर चेन उतार के देने वाले के गले में पहना देता है या उसको बख्शीश दे देता है। बहुत ऐसा इमाम करते हैं। पीर ताजुद्दीन वापस आए, यदि वापस आए तो बड़े राजी खुश थे, क्योंकि ये एक फख्र था कि मौला ने उनको जबा पागड़ी दी। तो वो जबा पागड़ी पहन के जमात खाने में आए, तो वो जिस आदमी ने वो दी थी ना, उसने पीर के ऊपर चोरी का आरोप लगाया कि पीर ने साहब के पास नहीं रखा, खुद पहन लिया। पीर फरमाया कि मैं पीर हूं। पीर कभी झूठ बोलता? मैंने इमाम को दिया, इमाम ने कबूल किया, तुमको दुआ दी है, और फिर इमाम ने मुझको ये चीज बख्शिश दी। मगर उस आदमी के बेअदबी भरे शब्द जमात खाने के अंदर सुन के किसी मोमन को ताव आ गया, और उसको उसने बोला कि तू बक मत, पीर की बेअदबी मत कर, जमात खाने के अंदर ये बनाओ बना। बस उसके अंदर तू मैं हो गई। उसके पक्ष वाले खड़े हो गए, उसके पक्ष वाले खड़े हो गए, जमात खाने के अंदर लकड़ियां चलनी शुरू हो गई। 30 बरस पहले डोडोमा के जमात खाने के अंदर लकड़ियां चली थी ना, कच्ची गुजराती कच्ची काठियावाड़ी के झगड़े में, तो कोई नई बात नहीं थी। खोजों में तो 1000 बरस 500 बरस पहले भी लकड़ियां चलाई जमात खाने में। इन लकड़ियों को देख के पीर तो आंखों में से आंसू आगे रोने लगे। आखिर उनको बीच में आके हटाने की कोशिश की, मगर 2-4 लकड़ियां पीर को भी लगी, लहू निकला, पीर नाराज हुए। बाहर की चोट कोई नहीं थी,
मगर दिल के ऊपर जो चोट लगी, फिर उस सदमे से दूसरे दिन जमा पूरा कर लिया, वफात पा गए, फिर गुजर गए। इमाम मुस्लिम सिलसिला बहुत नाराज हुए और उसके बाद हिंदुस्तान ने पीरी जमा बंद कर दिया, पीरी जमा बंद कर दिया हिंदुस्तान में। और फिर पंजाब और सिंध के कुछ आदमी मिलकर मौला के हुजूर में गए थे, उन्होंने इमाम को बहुत अर्ज की, माफियां मांगी। फिर इमाम मुस्लिम सिलसिला ने पंदियात जवामर्दी नाम की चौपड़ी है, हमारे इधर होगी शायद, ये पीर का दर्जा उस चौपड़ी को इमाम मुस्लिम सिलसिला ने दिया। पंदियात जवामर्दी गुजराती में भी उसका ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में भी अभी ट्रांसलेशन हुआ है, लेकिन असल वो फारसी भाषा में लिखी हुई है। मौलाना इमाम मुस्लिम सिलसिला ने पीर पंदियात जवामर्दी, ये चौपड़ी आप पढ़ो, उसमें बड़ी नसीहत की बातें हैं। मौलाना इमाम मुस्लिम सिलसिला के फरमान हैं। उसके बाद कोई पीर इंडिया में नहीं आया, लेकिन मौलाना हसन अली शाह माँ बाप की माँ बीबी मरियम खातून, जिसको हम पीर माता सरकार अपनी पीर की पुठियों में पढ़ते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए इंडिया में आई थी, क्योंकि कच्छ के अंदर कुछ जमातों में झगड़ा हो गया था, तफावत हो गई थी, और उस वक्त पीरी जोत मौलाना हसन अली शाह माँ बाप ने अपनी माँ को दी हुई थी। तो पीर बीबी सरकार कच्छ आई, कच्छ में आके शांति कराई, काठियावाड़ भी गई, बम्बई भी आई, और बम्बई के जमात खानों में पीर बीबी सरकार बहुत बड़ी उम्र हो गई थी मगर वाज करती थी। आखिर वो वापस ईरान गई और वहां गुजर गई। ये झगड़े चलते रहे थोड़े थोड़े। 1842 में मौलाना हसन अली शाह माँ बाप जब हिंदुस्तान में आए तो उस वक्त अपने साथ 2000 आदमी लेके आए थे। उनके साथ उनके बड़े बेटे मौलाना अली शाह माँ बाप भी थे। मौलाना अली शाह के पास पीरी जमा था और पिता हसन अली शाह के पास इमामत का जमा था। दोनों बाप बेटे शाह पीर हिंदुस्तान में आए। लगभग 450 बरस के पीछे हिंदुस्तान में पीर आए और इमाम तो दूसरी दफा आए। पहली दफा मौलाना इमाम शाह खलीलुल्लाह हिंदुस्तान में, इमाम अबुल हसन शाह हिंदुस्तान में आए थे, नादिर शाह दुर्रानी के साथ आए थे और थोड़ा टाइम लाहौर तक आके ठहरे थे, फिर वापस चले गए। 1866 में अमुक इस्माइलियों ने, जिन्होंने जमात के अंदर फितना किया था, वो जमात से जुदा पड़ गए थे, उन्होंने मौलाना हजरत इमाम शाह हसन अली के विरुद्ध में केस किया। 1866 में केस क्यों किया? ये लोग जिनको हमने बार भाइया का नाम दिया, बाहर निकाले हुए भाई, एक्सपेल्ड, नाश पार किया हुआ, ये लोग कहते थे कि मुफ्ती कामड़िया का अमलदारों का इलेक्शन होना चाहिए। मैं आपको कह दूं कि इस्माइली मजहब में या कोई भी शिया मजहब में, हम शिया है ना, शिया मजहब में इलेक्शन नहीं हो सकता। कभी किसी पैगंबर का इलेक्शन हुआ है? और पैगंबरों ने जिन जिन को बनाया है उनका भी इलेक्शन नहीं होता। सुन्नियों के अंदर इलेक्शन है, शियों में नहीं। ये लोग मुखी कामड़िया जो हाजिर इमाम की तरफ से बनाए जाते हैं, उनके साथ उनको वांदा था, इसलिए फितना हुआ। वो लोग कहते थे कि जो कुछ भी हम कारसाजी वगैरह देते हैं ये जमात के ऊपर खर्ची जाए और उसका मुखी कामड़िया हमको हिसाब देवे और हम जिसको इलेक्ट करें वो मुखी कामड़िया बने। मौलाना हसन अली शाह बाप ने फरमाया कि ये बात नहीं बन सकती धर्म में। ये कोई दुनिया की ऑफिस नहीं है, ये कोई म्यूनिसिपैलिटी नहीं है, ये कोई राजगादी की बात नहीं है, ये धर्म है और धर्म के अंदर इलेक्शन नहीं होता। भला मुझको बताओ, ये तिनिये मिनिये 5-6 बरस के छोकरे स्कूल में जावे और स्कूल के अंदर नाक के ऊपर चश्मा रखा हुआ कोई कदरूपा मास्टर आ जाए तो छोकरे बोले नहीं हमको ये मास्टर नहीं चाहिए, हम तो मास्टर का इलेक्शन करेंगे। ये कोई बात है? कभी मास्टरों का इलेक्शन हुआ? टीचरों का इलेक्शन हुआ? इमामों का कैसे इलेक्शन हो सकता है? कभी किसी ने अपने बाप का इलेक्शन किया? मौलाना हजरत इमाम हमारे पिता हैं
रूहानी माँ बाप है। अल्लाह रसूल का इलेक्शन नहीं हो सकता। हमारे मज़हब में इलेक्शन की बात ही नहीं है, न हमारे कौम के अंदर ये चीज है। मगर ये झगड़ा खड़ा हुआ और कोर्ट तक गया। ये मशहूर केस हुआ आगा खान के 1866 आगा खान के। पढ़ो ये केस पढ़ो, आपको उसके अंदर इस्माइली मस्जिद की बहुत सी अच्छी बातें मिलेगी। वो दुश्मनों ने क्या अटैक किए हैं और इस्माइलियों ने विटनेस ने क्या क्या उनके जवाब दिए हैं। वो केस वो लोग हार गए और केस हमारी फेवर में आया। ये लोग बाहर निकल गए, खोजे थे मगर सुन्नी बन गए, सुन्नी मजहब में चले गए क्योंकि उनके पहले से आइडियाज सुन्नी मजहब जैसे थे। इलेक्शन विलेक्शन की बात से ही पता लग जाता है। तो 1866 में हिंदुस्तान में मुंबई में कटिहार में और कच्छ में ये बार भाइया निकल गए। जब हसन अली शाह महमूद ने वफात पाई, मौलाना अली शाह गादी के ऊपर आए। 4 साल के बाद मौलाना सुल्तान महमूद शाह गादी के ऊपर बैठे। मौलाना हजरत इमाम के कुटुंबियों के अंदर और अमुखोरियों के अंदर इस्नाशरी एलिमेंट बहुत था और ये जो बार भाइया निकल गए उनके सगे कुटुंबी भी थे इधर, और ये आने जाने के कारण से अंदर सड़ा लगता रहा। आखिर 1960 के अंदर बंबई में फिर एक दफा गड़बड़ वगैरह हुई और मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के चाचा की बेटी, उनकी कजिन होती थी हाजी दीदी, जिसका नाम था हाजी दीदी, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के दूसरे कजिन मचूल शाह की घरवाली थी। मचूल शाह गुजर गए। हाजी बीबी ने अपने भाई सुल्तान मोहम्मद शाह के ऊपर केस किया कि मेरा दादा और सुल्तान मोहम्मद शाह का दादा हसन अली शाह ईरान से इधर हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान के मुरीद जो कुछ भी ये कारसाजी माल वगैरह जो देते हैं, नांदी देते हैं, मेहमान देते हैं, दस्तून देते हैं, वो मेरे दादा के नाम पर देते हैं, यानी हसन अली शाह के नाम पे। तो दादा की मिल्कत के अंदर पोतरे पोतरी का हक होता है। उसने अपना हक मांगा। बहुत मशहूर केस रहा 1908 का ये हाजी बीबी का केस। उसके अंदर हमारी तरफ से जबानियां हुई। खुद मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह की माँ माता सलामत, जो इस्नाशरी मजहब पालती थी, लेकिन अली शाह माँ बाप के गुजर जाने के बाद इस्माइली मजहब की बहुत बड़ी वलन हुई और मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपनी माँ को इस्माइली मजहब में कबूल किया। ये माता सलामत भी कोर्ट में गई थी और खुद माता सलामत ने उस वक्त कहा था कि भले मैं इस्नाशरी मजहब पालती हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मेरा बेटा इस्माइलियों का इमाम है और इस्माइली लोग जो कुछ भी देते हैं वो गादी को देते हैं। मेरे घर वाले अली शाह के नाम पे या मेरे ससुर हसन अली शाह के नाम के ऊपर उनके कुटुंबियों के वास्ते उनको दुनियावी सरदार मान के नहीं देते, लेकिन अल्लाह रसूल का नूर मान के उसको देते हैं। इसके लिए इस माल के अंदर इमाम के सिवा और किसी का हक भी नहीं। भले मैं माँ हूँ लेकिन मेरा भी उस माल में हक नहीं। माता सलामत की जबानी बड़ी वजनदार थी और इस्माइलियों ने भी यही कहा कि हम अल्लाह रसूल की गादी शाहपीर को देते हैं। शाहपीर का माल है और शाहपीर के जो सगे कुटुंबी हैं उनका किसी का इसके अंदर माल में हक नहीं है। आखिर ये केस भी हमने जीता। हाजी बीबी वो केस हार गई। 3-3.5 लाख रुपया उसके ऊपर वो जो खर्चा पड़ा वो भी पड़ा। आखिर मौला की बहन थी, चाचे की बेटी, माँ बाप उसको आखिर दम तक 500 रुपया महीना देते रहे। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस तरह से हमारे कौम और मजहब के अंदर फेर फार होते रहे। आपको पता है हम लोग खाना पीना खाते हैं ना, और फिर उसके अंदर से कचरा भी बाहर निकालते हैं, नहीं निकालते? रोज जाते हैं हम कचरा निकालने के लिए। तो जीती जागती कौम में से थोड़ा थोड़ा कचरा भी निकलना चाहिए। मुर्दे को सनाद और पाखाना नहीं आता, लिविंग कौम को आता है, और ऐसा कचरा थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। हर जमाने के अंदर हर इमाम के सामने, हर नबी के सामने ऐसे बदमाश लोग आते रहे और आते रहेंगे। हमारी कौम के अंदर ऐसे कई हैं कि जो हाजिर इमाम को नहीं मानते लेकिन बैठे हैं। क्यों? कि जो फैसिलिटीज हमको हमारी कौम में है दूसरी कौम में नहीं है। तंग हो जाते हैं। लेकिन अच्छे मोमिन वो हैं
جو مولا کو اپنا مالک مانتے ہیں. دلوں کا مالک حاضر امام ہے. ہمارے دل میں کیا چھپا ہے کسی کو معلوم نہیں, لیکن مولا کو معلوم ہے, بالکل معلوم ہے. میں کمپالا گیا کچھ برس پہلے, کمپالا میں نے واز کی, اور واز یہی تھی کہ امام کیا ہے, امام کی محبت, امام کی تابع داری کے اوپر میں نے واز کی. نیچے اترا ایک آدمی کہتا ہے مشنری صاحب مفتی صاحب تو دلی سے اترے گے, آدھا گھنٹہ لگ جائے گا, آپ 10 منٹ کے لیے میرے ساتھ چلو. میں بولا اس پر ہمیں نہیں جاتا, بات کیا ہے؟ تو اس نے مجھے بات سنا کہ مجھے آپ کو آج کی واز کے مطابقت میں آ گئے, ایسے میں آپ کو 2 خط بتانے چاہتا ہوں. میں نے کہا مجھے پہلے ڈیٹیل بتاؤ پھر سنوں, یوں ہی کسی کے گھر میں مشکل سے جاؤں. نیچرلی ٹھیک ہونا ٹھیک بھی نہیں, لیکن جب اس نے مجھے امپورٹنٹ بات بتائی میں اس کے گھر گیا. اس نے مولا کو ایک عریضہ بھیجا تھا. مولا نے عریضہ پڑھا, اس کا جواب دیا. عریضہ اس کا میں نے پہلے پڑھا. اس نے کونسل کو, آگے والوں کو خوب گالیاں دی, مشنریوں کو بھی لتاڑا, یہ سب ذتین ہے, سب فضول ہے, یہ ہے وہ ہے, خوب گالیاں نکالی لیڈروں کے وروج میں. آپ کو پتا کہ جب یہ اسماعیلی ماؤ نکلے تھے نیروبی والے, تو اس کے اندر وہ غلام حسین موٹر والا, غلام حسین پتہ نہیں بعد میں کیا نام تھا کافر کا, اسماعیلی مذہب ڈرم پیپر کے اندر اس کا انٹرویو آیا تھا. مولانا حاضر امام کی ملاقات ہوئی تھی, تو اس نے سب سے بڑا بلیم مشنریوں کے اوپر رکھا. سب کو بولا اس نے کہ ہماری قوم کے اندر سب سے خطرناک لوگ یہ مشنری ہیں, اس لیے کہ یہ ہمیشہ لوگوں کو اس بات کے لیے پرسن کرتے رہتے ہیں کہ تو خدا ہے, اور تو خدا نہیں. پر میں کہاں سے, ساری دنیا تھوڑی خدا کو مانتی ہے. تو اس نے بھی خوب گالیاں نکالی, مگر مولانا حاضر امام نے اس کو کسی بات کا جواب نہیں دیا, لیکن صاحب نے کاغذ ایکنالج کیا. میرے روحانی بچے اسماعیلی تو ہے, مجھے تیرا کاغذ نہیں علامہ تاریخ کا. میں نے بہت دھیان سے پڑھا, لیکن تو میری قوم کے وڈیلوں کو, آگے والوں کو کس طرح سے کرٹیسائز کر سکتا ہے کہ جب تو خود اسماعیلی مذہب کے اوپر چلتا ہی نہیں اور جماعت خانے تلک تم آتا نہیں. بس یہ آدمی مجھے کہتا ہے مشنری صاحب خط پڑھ کے تو میں حیران رہ گیا. بات سچ ہے, میں کبھی جماعت خانے نہیں گیا تھا اس تلک, اور میں اسماعیلی مذہب کے اوپر اعتقاد بھی نہ رکھتا تھا. میں اتنا آرڈینری آدمی ہوں کہ کبھی آپ جماعت میں پوچھو کہ فلانا آدمی کون, تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. حاضر امام کو میں نے خط لکھا تو اس کو یہ پتا ہے کہ میں جماعت خانے نہیں جاتا, اس کو یہ معلوم ہے کہ میں اچھا اسماعیلی نہیں, ادھر بیٹھے بیٹھے اس کو معلوم ہے. یہ سچ مچ خدا بنا نہیں ہے. اس کا ایمان آ گیا. حاضر امام کا لیٹر ملنے کے بعد کہتا میں نے اسی دن آ کے مکھی کاوڑیا سے چھانٹا لیا, معافی مانگی. میں آج روز جماعت خانے آتا ہوں, مجھے کتنا بھی کام ہوئے, کہیں جانا ہوئے, دعا پڑھنے تک مجھے نہیں رکنا, تو میں جماعت خانے آ کے دعا کرا کے چلے جاتا ہوں, لیکن جماعت خانے میں چوکتا نہیں ہوں. میں نے آپ کو یہ بات کیوں بتائی بھلا؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ظاہر خانے بھلے حضرت امام ایرنگا میں نہیں ہے, مگر اس کو سب معلوم ہے کہ کون روز جماعت خانے آتا ہے. صرف ایرنگا نہیں, ساری دنیا, اسے سب معلوم ہے کون مومن ہے, کون فریبی ہے, دغاباز ہے, کون سچا ہے, کون کھوٹا ہے, وہ سب جانتا ہے. اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اس کو دور مت سمجھو, وہ یہاں حاضر ناظر موجود ہے, ہمارے دلوں کی بات جانتا ہے. بھلے ہم یہاں بیٹھے ہیں مگر اس کو وہاں معلوم ہے, سب کچھ پتا ہے اس کو. امام زمان خداوند عالمین کا نور ہے, اس کو پریم محبت سے مانو, اس کی خدمت کرو. یہ اسماعیلی مذہب بڑی نصیب داری سے ہمیں ملا ہے, بہت نصیب داری سے.
हमारे बाप दादा का पुण्य है। किसी की बाप, किसी की दादी, किसी की नानी, किसी की माँ, किसी की बहन, कौन जाने कौन ऐसी अंदर छुपी छुपी बंदगियां करते हैं और वो अपने कुटुंबियों के लिए दुआएं मांगते रहते हैं, या मौला तू मेरे बच्चे को ईमान दे, या मौला तू मेरे घर वाले को ईमान दे, या मौला तू मेरे बाप को ईमान दे। इस तरह ईमान की दुआएं मांग मांग के बड़े बड़े काफिर किसी दिन ताइब होके छाता लेके अच्छे इस्माइली बन जाते हैं। वजीर इस्माइल गांधी जी जो थे जूनागढ़ वाले, उसका धंधा 420 का धंधा था, पक्का 420। उसने चोर चका रखे हुए थे अपने हाथ के नीचे, वो चोरियां करके आवे और ये माल खरीदे। जमा खाने नहीं आता था, ऐसा कभी चंद्ररात को आ जावे। पीर सब्जली कहा करते थे, कहते 4 प्रकार के लोग हैं हमारी कौम के अंदर। एक आती यानी रोज आने वाले, एक जुमेराती जो जुमेरात आते हैं, एक चंद्राती जो चांद्रात को आते हैं सिर्फ महीने में एक दफा, और एक मन भाती, कभी कोई कमर मंडाना है तब आते हैं, या कभी कोई ऐसा सिलसिला हुआ तो आते हैं। 4 प्रकार के लोग हैं, आती, जुमेराती, चांद्राती, मन भाती। और बात सच है, ये 4 प्रकार के लोग हर जमात के अंदर बैठे हुए हैं और इमाम एक एक को जानता है। तो ये भाई साहब, ये जुमेराती थे। वजीर इस्माइल गांधी अपनी शुरुआत की लाइफ में, जवानी की लाइफ में उनका ये हाल था, चोरी का धंधा करना, झूठ फरेब करना। उसने तराजू बनाई हुई थी, तराजू यानी वजन करने की जो नहीं तराजू होती, बैलेंस। तो नीचे एक साइड में उसने नीचे बीन लगा के कुछ आधा रसल के पार रसल नीचे वजन लगाया हुआ था। माल लेना होवे तो इस तरह वजन करे, देना होवे तो ऊंधा करके वजन करे। लेते वक्त रसल का 1.25 रसल लेवे, पैसे रसल के चुकावे, और देते वक्त रसल वजन करे मगर निकले कौन रसल। और हमारे बहुत से व्यापारियों के अंदर भी ऐसी आदत थी आगे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमानदार बन रहे हैं। कभी कोई कपड़ा देता है तो खींच के उसको 7-8 बार कपड़ा हो ना, खींच के दो तो 7.25 बार निकलेगा। ये बेईमानियां मजहब नहीं कबूल करता। इन बेईमानियों से कमाया हुआ पैसा रहता नहीं। कपड़ा खींच के बेचो या वजन खराब करके दो। कुरान के अंदर अल्लाह ने बहुत गालियां निकाली है इस बात के लिए। नबी ने भी इस चीज को बहुत गुस्सा किया है, हमारे इमामों ने भी इस चीज का गुस्सा किया है कि व्यापार बिजनेस के अंदर दगा न करो। अपने जीवन में बिल्कुल कोई बात में दगा न करो। प्लेनली कह दो ये तस्वीर मैंने 2 सेंट में